Anyone? Poor name, at least the topics. What have we discussed so far? Hello, hello. In the last class, we discussed some thing about string slicing, Hmm. then data types and the Hmm. operations on them. Okay. So what was the assignment in the last class? Huh? Assignment last class में हमने क्या रखा था? Negative indexing, memory view, triple double quotes, and then you asked us about making a program about calculator, and then sequence mapping and set data types. Got it. So I will quickly. I guess calculator वगैरह तो आसान था. I hope all of you have designed that. Let me quickly show you the negative indexing. How do we do that? Just a minute. Let me show my screen. Then we will start with today's topic. Okay. I hope my screen is visible. Okay. So whenever we have any variable that is, as of now we have a hello world string variable, and if you want to do the negative slicing in it, it is simple. You need to just put -5 and -2. Can someone explain, if you have done this assignment, what will happen when I will run it? What will be the output of it? Anyone? Simrat. Uh, the result will be Hmm. from 0, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, from O to D. O2 D. D, between O to D, OTD. For example, ORL will be here, like -5 from the last and -2 from the last. Whatever will be in between of that, that thing will be printed. Okay. So this is a basic thing, but today's topic is important. Again, I was uh, informing you that today we're gonna discover about the list, tuples, dictionaries, set. First, let me tell you why I'm saying this topic is important. Whenever someone is starting the data structures, it doesn't matter that if you are starting, even if with C++ or any programming language, it doesn't really matter. But in the data structure, when we are working with the Python, list type dictionary set plays a big role. Okay, whatever we were doing so far, those were basics, like variables and everything that we were discussing. Those were the basic things. But the important things start from here. When I'm saying important thing, I'm saying from the view of interviews and other things. Okay, why I'm mentioning these points? For example, if you have to organize the data, if you have to store the data, if you have to simply do any manipulation in the data, you have to use the data structures. And how many types of data structures we have here? We have list, tuples, dictionaries, and set. Okay, and one more confusing thing about four of them is all of them are look similar. मतलब अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो इतना कुछ समझ नहीं आता, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है तो, कि इनमें फ़र्क क्या है। सब तो एक एरे जैसे दिख रहे हैं, सब में तो एक कुछ तो डब्बे बनाए, उसके अंदर हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं. So we cannot really differentiate between them if we are not knowing about some particular words. ठीक है.
So whenever you are going for any interviews, those words will be tackled. आज का जो सेशन होगा हमारा, लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा. Those are the real questions that generally asked in the interviews on the basis of list, tuples, dictionaries and set. ठीक है. अब देखो, डिक्शनरी, सेट, टपल्स और लिस्ट, इनको हम जनरली यूज़ क्या करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम डिक्शनरी की बात करें, तो जब हम वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तब कई बार होता है ना, रिक्वेस्ट अप्रूव करनी होती है. अब कैसे कि रिक्वेस्ट पैरामीटर्स होते हैं. अब अगर आप कभी एक्सप्लोर करोगे तब आपको पता पड़ेगा. तो देन डिक्शनरी प्लेज अ बिग रोल. अगर आपके पास क्या होता है डिक्शनरी, वो मैं एक्सप्लेन करूँगा. बट डेटा एनालिसिस हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, मशीन लर्निंग का कोई भी पार्ट हो गया, वहाँ पे आपको डेटा स्ट्रक्चर्स रिक्वायर्ड होते हैं. Okay, and one more thing about the examples, like last two sessions I was doing bit conjuicy when writing the variable names, because I was thinking that I can save the time to utilize in other things. I was using A, B, C, D, X, Y, Z. So sometime it is hard to अंडरस्टैंड, क्योंकि ए बी सी डी की जब चीज़ें दिखने लगती हैं ना, तो हमें मैथ लगने लगता है कि कहीं ना कहीं वही वेरिएबल्स हैं, एलजेब्रा की चीज़ें चल रही हैं, तो वो हमें ना बोरिंग सा हो जाता है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी वर्किंग ऑन द सम एग्जांपल्स जो हमें रियल दिखें, जो हमें रियल यूज़ केस दिखे. इसलिए मैं बचा रहा था क्योंकि हम फिर ज़्यादा टॉपिक्स नहीं कर सकते. सो आई आस्क द टीम एंड वी हैव डेवलप्ड सम एग्जांपल्स फॉर यू दैट आई हैव इन माय क्लिपबोर्ड. सो वी विल बी यूजिंग दोज एग्जांपल्स डायरेक्टली, क्योंकि उससे ना आपको याद रहेगी चीज़ें जल्दी से, क्योंकि एबीसी याद करना मैं समझ सकता हूँ टफ हो जाता है. ठीक है. तो आज का हमारा टारगेट होगा कि सम हाउ वी हैव टू कवर ऑल द बेसिक्स एंड द क्वेश्चनरी फॉर द डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव इन द पाइथन. ठीक है. Now, before starting with all of these things, let me clear something here. Let me stop sharing my screen. Look, before even starting with the definitions of list, tuple, set, and dictionary, I will clearly mention few words. If you are keeping notes with you, then you can note down these words. The first and important word is mutability. mutability, mutability. Okay. Second is order. होता क्या आप हम देखेंगे with examples. Third is access. Fourth is duplicates. And the last part is hashable. आपको जब भी कभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर जब भी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होगी, या फिर जब भी कभी आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा इन चारों डेटा स्ट्रक्चर्स में, आपको यही 4 to 5 वर्ड्स होंगे जो डिफरेंस क्रिएट करके देंगे. ठीक है. So one by one, gonna explore all of them. Okay. So let me share my screen again. Okay. Okay. So quickly start with the structure of list. देखो होगा क्या, चाहे आप लिस्ट देखो या फिर डेटा के कोई भी स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल देखो, चारों, आप कोई शॉर्टकट वर्ड तो नहीं बार बार बोलना लेंथी हो रहा है, तो उन सब में हम क्या करेंगे, डेटा स्टोर करेंगे. ठीक है. द डेटा कैन बी, अगेन अगर हम यहाँ पे डेटा की बात करेंगे तो हर एक की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है चारों में, कि हम कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, वो हम देखते हैं. बट एज ऑफ हम समझ के चलते हैं, जो हमने डेटा टाइप्स पढ़े थे वो हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा, फ्रूट्स एप्पल बनाना एंड चेरी. अगर मुझे कोई एक डेटा है, तो आइदर गोइंग विद डिफरेंट थिंग्स. फॉर एग्जांपल कि मैं लिखूंगा एप्पल फ्रूट है, बनाना फ्रूट है, चेरी फ्रूट है. आई विल क्रिएट अ सिंपल, व्हाट इज दिस, लिस्ट और डिक्शनरी और सेट. कैन समवन टेल इट, ये क्या है?
ओके, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ लिस्ट। जब भी आपको स्क्वायर लिखें और बीच में कुछ डेटा हो और डेटा को हम सेपरेट करें किससे, कॉमा से, तो वो क्या होता है, लिस्ट। ठीक है, अब देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें कि हम इंडेक्सिंग नहीं कर सकते या फिर कुछ और नहीं कर सकते, हर एक की अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें यहाँ पे देखनी, टपल और डिक्शनरी और सेट में। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट्स के अंदर ये सारी वैल्यूज स्टोर की, अब अगर अपने पास रखा है, आपने कुछ कंपाइलर वगैरह आप यूज करें तो साथ में आप प्रिंट करके देख सकते हैं। यू कैन सिंपली प्रिंट द फ्रूट्स एंड ऑल ऑफ द डेटा विल बी प्रिंटेड। Okay, so now let me quickly start with the differentiation point, जिससे थोड़ा आसान हो जाएगा समझाना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूटेबिलिटी की, कि कोई डेटा स्ट्रक्चर जो हमारे पास 4 हैं उनमें आपको अगर पता करना है कि वो म्यूटेबल हैं कि नहीं है, दो वर्ड्स होते हैं, एक म्यूटेबल, एक होता है इम्यूटेबल। चारों में अलग अलग प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल लिस्ट म्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल, सेट म्यूटेबल एंड डिक्शनरी वापस से म्यूटेबल। बट म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, देखो कई बार क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको रन कर रहे होते हैं, एक बार हमने बना दिया, कोई वेरिएबल डिफाइन कर दिया, अगर हमें वेरिएबल का डेटा बाद में चेंज करना है, हम आसानी से चेंज कर लेते हैं कि a इक्वल्स टू 5 मैंने डिफाइन किया, बाद में मैं a इक्वल्स टू 7 लिखूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा चेंज कर रहा हूँ, यानी कि एक बार वेरिएबल क्रिएट करने के बाद मैं डेटा चेंज कर रहा हूँ, यानी कि मैं उससे क्या कर रहा हूँ, म्यूटेबल है वो डेटा, जो हम a को 4 असाइन किया फिर बाद में a इक्वल्स टू 7 असाइन कर दिया, दैट मीन्स इट इज म्यूटेबल। तो कोई भी चारों डेटा स्ट्रक्चर्स में से, लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी में से, अगर मैं उनका डेटा चेंज कर सकता हूं आफ्टर क्रिएटिंग द लिस्ट और टपल और सेट और डिक्शनरी, देन दैट डेटा स्ट्रक्चर इज म्यूटेबल। गॉट इट, कि जब भी हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने अभी आपको सेट का एग्जांपल सामने दिखा रखा है, कि अगर एक बार मैंने फ्रूट्स नाम का ये बनाया सेट या लिस्ट या डिक्शनरी या कुछ भी, एज ऑफ नाउ इट इज लिस्ट, तो अगर मैं बनाने के बाद इसका मैं चाह रहा हूँ कि एक बार मैं बना दिया, वापस मैं इसका एग्जाम्पल मैं भी दिखाता हूँ कि बनाने के बाद लिस्ट मैंने चेंज करना है, और अगर मैं कर पा रहा हूँ तो वो म्यूटेबल है, अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो वो क्या है, इम्यूटेबल। ठीक है, तो म्यूटेबल कौन कौन से होते हैं, ये याद करने के बजाय सिर्फ हमें ये याद करना होता है कि इम्यूटेबल क्या होता है। तो जो टपल्स हम क्रिएट करेंगे, अभी देखेंगे होता है, वो क्या होता है, इम्यूटेबल। जब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है ना याद करने को या प्रैक्टिस करने को, तो हम ऐसे देखते हैं शॉर्ट कौन सा याद करने वाला, तो बाकी के चारों में से 3 क्या होते हैं, म्यूटेबल, सिर्फ एक होता है जो इम्यूटेबल होता है, यानी कि एक बार अगर आपने क्रिएट कर दिया तो आप उसका डेटा चेंज नहीं कर सकते, और वो होता है टपल। ठीक है, टपल को अगर आपको मैं ऐसे शॉर्ट में बताऊं तो कोई डिफरेंस नहीं होता, जहां पे हम यहाँ लिस्ट में स्क्वायर ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, ओपन ब्रेसेस। ओके, पैरेंथेसिस जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो हम यहाँ पे यूज करते हैं, और सेम गोज फॉर सेट। अगर सेट की बात करेंगे तो वहां पे हम कौन से ब्रेसेस यूज करते हैं, कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, और आप वहां पे लिख सकते हो सेट, देन पैरेंथेसिस आप लगाइए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद आप उसमें डेटा लिख सकते हो। जैसे हम इंट डिफाइन करना होता है ना, तो इंट इनपुट कल हम डिफाइन कर रहे थे, सेम आप सेट लिखिए और उसके अंदर कोई भी डेटा आप लिख दीजिए, तो आप ऐसे सेट जनरेट कर सकते हो। अभी मैं बोल रहा हूँ एक एक करके सबका एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं म्यूटेबिलिटी का। अब मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं पाइथन में, वो एक एक करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, अपेंड एक फंक्शन है जो हम यूज करते हैं लिस्ट के साथ। लिस्ट के साथ हम बहुत सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम जो लिस्ट का यूज करते हैं इसलिए यूज करते हैं कि बार बार हमें लिस्ट की वैल्यू चेंज करने के बजाय मैं अपेंड यूज करूंगा। अपेंड यूज करने के साथ क्या होगा, मैं इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या करूंगा, चेंज कर दूंगा। अब कहीं भी अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा, मैंने यहाँ पे रन किया, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट, सॉरी,
तो हमारे पास प्रिंट होकर क्या आ रहा है 1 2 3 4, यानी पहले मैंने लिस्ट को डिफाइन किया, मैंने वैल्यूज में इनपुट की 1 2 3, अपेंड का यूज किया। अपेंड का यूज करना मतलब कि मुझे इसमें कभी ऐड करना होगा लिस्ट में, तो मैं क्या यूज करूंगा अपेंड। अपेंड फंक्शन के अंदर आप कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर मैं अपेंड 4 की बजाय अपेंड 5 लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1 2 3 5 आ जाएगा। तो अपेंड फंक्शन किसके साथ यूज होता है लिस्ट के साथ, कि आप माई लिस्ट डॉट अपेंड लिखिए और आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट क्या हो गया हमारा म्यूटेबल, क्यों, क्योंकि हम इसका डेटा एक बार लिखने के बाद चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इम्यूटेबल में सिर्फ एक ही होता है, वो होता है टपल। टपल के अलावा और कुछ इम्यूटेबल नहीं होता है, बाकी के तीनों का आप डेटा चेंज कर सकते हैं एक बार डिफाइन करने के बाद, चाहे वो सेट हो चाहे वो डिक्शनरी हो। ठीक है, अब जैसे कि मुझे टपल डिफाइन करना है, तो टपल के केस में मैं क्या करूंगा, टपल को हम ऐसे डिफाइन करते हैं सेम नंबर 1 2 3, बट एक बार अगर मैंने ये डिफाइन कर दिया और अगर मैं सोचूं कि मैं माई टपल डॉट अपेंड करके कोई नंबर इसमें ऐड करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये इम्यूटेबल नहीं है, मुझे दूसरा एक टपल डिफाइन करना पड़ेगा अगर मुझे डेटा चेंज करना है तो। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास टपल। अगर सेम इसके मैं ब्रेसेस चेंज कर दूंगा ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लिस्ट। जस्ट अ सेकंड, ओके। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई डेटा है, अब अगर डेटा को हमें, अब इनका रीजन क्या होता है कि भाई इतने सारे जब सारे साथ एक जैसे हैं तो फिर अलग अलग क्यों डिफाइन करते घूम रहे हो लिस्ट को, कहीं कहीं टपल को, कहीं सेट को, कहीं डिक्शनरी को, एक ही चीज से काम चला लो। नहीं, कई बार हमारे पास डेटा होता है जो हमें, जैसे मैं अभी स्पेसिफाई कर रहा था कि डिक्शनरीज होती हैं, वो हम वेब डेवलपमेंट का कभी भी कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, जैसे मैंने बोला था रिक्वेस्ट पैरामीटर्स जब हम करते हैं पाइथन के, अगर आप कोई वेब डेव में जाओगे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं लाइक डीजेंगो वगैरह करके कुछ होता है, तो वहाँ पे हमें इनके यूज पड़ता है। अगर आपको डेटा है और आपको चाहिए कि वो मैं चेंज ना हो, रन टाइम पे चेंज ना हो, तो मैं लिस्ट डिक्शनरी या सेट का यूज नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि वो चेंज हो सकते हैं, मैं टपल का यूज करूंगा जो चेंज हो ही नहीं सकता। ठीक है, नाउ तो ये क्या हुआ हमारा एक म्यूटेबल का एग्जांपल, और सेट क्या होता है, सॉरी टपल क्या होता है इम्यूटेबल, सेट और डिक्शनरी म्यूटेबल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब आता है हमारा पर जो नेक्स्ट वर्ड था म्यूटेबल के बाद डिफरेंशिएट करने के लिए चारों चीजों को, वो होता है ऑर्डर। ऑर्डर एज इन आप ऐसा समझिए कि जब आपको मैं डेटा स्टोर कर रहा था वहां पे हम एज ए वेरिएबल स्ट्रिंग में, एक मिनट, ओके, तो जब मैं डेटा स्टोर कर रहा था स्ट्रिंग में, तब हमारा जो डेटा हम चेक कर रहे थे, लाइक इंडेक्सिंग कर रहे थे 0 1 2 3 4 5 से, तो सारा का सारा कैसे कैसे स्टोर हो रहा था। अगर मैंने एक स्ट्रिंग बनाया टेकफ्यूजन नाम से, और टेकफ्यूजन नाम के स्ट्रिंग बनाने के बाद अब मैं बात करूंगा तो इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है टी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, इंडेक्स नंबर 0 पे क्या है टी, 1 पे क्या है ई। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं ऑर्डर। तो जब आप कोई डेटा सेट क्रिएट करते हो डेटा स्ट्रक्चर्स में, आइदर यू आर यूजिंग फ्रॉम फोर ऑफ देम लिस्ट टपल से डिक्शनरी, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, आप उनको यूज करके आप एक डेटा सेट क्रिएट करने जाते हो, देन जो हमारा डेटा स्टोर हो रहा है या तो लिस्ट में
या टपल में या सेट में या डिक्शनरी में, तो वो कैसे स्टोर हो रहा है। अभी मैंने डिक्शनरी सेट का एग्जांपल नहीं दिया, अभी देखते हैं डिक्शनरी सेट का भी एग्जांपल। तो वो कैसे स्टोर हो रहा है कि वो ऑर्डर के साथ स्टोर हो रहा है या फिर अनऑर्डर्ड स्टोर हो रहा है। लेकिन ये मेरे से रिसेंट कुछ आई गेस फ्यू मंथ्स बैक एक क्वेश्चन आया था कि अन जो डिक्शनरी होती है हमारी वो ऑर्डर्ड होती है या अनऑर्डर्ड। तो जो आपको पुराने डॉक्यूमेंटेशंस मिलेंगे कहीं पे भी, वहाँ पे लिखी होगी अनऑर्डर्ड। ये डिक्शनरी क्या होती है, अनऑर्डर्ड होती है। बट फ्रॉम आपको शायद पता हो कि पाइथन के भी अलग अलग वर्जन आते रहते हैं। तो जो पाइथन का न्यूएस्ट वर्जन है आफ्टर पाइथन 3.7, पाइथन 3.7 जो वर्जन है, तब से हमारी डिक्शनरी क्या है, ऑर्डर्ड। तो कभी अगर मुझे चेक करना होगा एज इंटरव्यूअर कि आप अपडेटेड हो कि नहीं हो, देन आई विल सिंपली आस्क अ क्वेश्चन कि अगर जो डिक्शनरी है हमारी वो ऑर्डर्ड होती है अनऑर्डर्ड होती है। तो अगर मैं ऐसे रिप्लाई करूंगा ना कि बिफोर पाइथन 3.7 डिक्शनरी वाज अनऑर्डर्ड बट आफ्टर पाइथन 3.7 द डिक्शनरी वाज ऑर्डर्ड, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि डिक्शनरी के जो फंक्शंस थे वो चेंज हो गए पाइथन के न्यू वर्जन आने के साथ से। ठीक है, ये तो सेम ही था। लिस्ट कैसा होता है हमारा, ऑर्डर्ड। टपल क्या होता है, ऑर्डर्ड। और सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड। डिक्शनरी क्या होती है, ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड क्या होते हैं कि अगर मैं जैसे स्टोर कर रहा था 1 2 3 4 यहाँ मैंने स्टोर कर रखा है, और जब मैं इनको चेक करूंगा, चेक कैसे करते हैं, जैसे मैं लेट मी डू इट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल उठाया, माई लिस्ट 314, और मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा माई लिस्ट इंडेक्स नंबर 1 को। When I'm printing index number 1, what should be printed? 1. Because here the rules of indexing are followed. Otherwise, अगर आप बात करेंगे सेट की, सेट के अलावा बाकी सारे जो तीनों हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड। बस एक सेट ऐसा होता है जो अनऑर्डर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुट इट, लुक। तो ये हम सेट को जब भी डिफाइन करना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, पैरेंथेसिस जो होती है उसकी कर्ली ब्रेसेस होती हैं। ठीक है, तो 314 स्टोर किया, प्रिंट करूंगा माई सेट को, देख रहे हो 134, क्योंकि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। जो भी कुछ आपने फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक और इसमें ऐड किया, जो भी इसमें स्टोर होगा वो ऐसे स्टोर नहीं होगा कि आपने एक बार 3145 स्टोर कर दिया तो 0 पे 3 हो गया, 1 पे 1 हो गया, 2 पे 4 हो गया और 3 पे 5 हो गया ना। जब इसमें वैल्यूज स्टोर होती हैं, लेट मी गिव इट यू, लाइक दिस। तो ये चीज़ यहाँ पे फॉलो ही नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे जो डेटा होता है वो कैसा होता है, अनऑर्डर्ड। क्लियर, कि सेट को छोड़ के बाकी सारे ऑर्डर्ड होते हैं, सेट होता है अनऑर्डर्ड। और ऑर्डर्ड के केस में डिक्शनरी जो थी 3.7 जो पाइथन का वर्जन आया था उससे पहले डिक्शनरी का जो हम कहते थे वो अनऑर्डर्ड थी, बट आफ्टर पाइथन 3.7 डिक्शनरी भी ऑर्डर्ड है। गॉट इट, एनी कंफ्यूजन सो फार कि ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड क्या होता है या म्यूटेबल अनम्यूटेबल क्या होता है? ओके, cool. Now, moving forward. नेक्स्ट हमारा आता है इसमें आफ्टर कंप्लीटिंग, दो वर्ड हो गए डिफरेंशिएट करने के लिए कि अगर आपको कोई बोले कि लिस्टेबल सेट डिक्शनरी में क्या डिफरेंशिएट होता है,
तो आपको डिफाइन करने के लिए दो वर्ड तो आपको मिल गए कि एक तो आप म्यूटेबिलिटी के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एक ऑर्डर के बेस पे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तीसरा आता है एक्सेस, कि आपने एक बार जो डेटा लिख दिया, जो अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेटा एक्सेस ही तो कर रहे हैं। भले ही मैं प्रिंट कर रहा हूँ या फिर मैं कोई स्पेसिफिक ऑर्डर पे प्रिंट कर रहा हूँ, लाइक आई एम प्रिंटिंग द इंडेक्स नंबर 0, प्रिंटिंग द इंडेक्स नंबर 1, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेस ही तो कर रहा हूँ, है ना। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेसिंग द डेटा, ठीक है। पहला होता है जो नॉर्मल हम कर रहे थे यहाँ पे इंडेक्स के थ्रू, जैसे कि हमने अभी किया था, एक हमने लिस्ट क्रिएट की और लिस्ट में अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स चाहिए तो मैंने इंडेक्स यूज किया और मैंने इंडेक्स नंबर 1 पे जो था वो प्रिंट कर लिया। तो हम क्या कहते हैं, एक तो होता है एक्सेस कौन सा, इंडेक्स के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं इंडेक्सेबल। बट सेट के केस में हमें सोचना नहीं है, क्योंकि सेट के केस में तो आप जो डेटा एक्सेस करेंगे वो क्या होगा, अरे वर्ड फंस गया, अनइंडेक्सेबल होगा, ठीक है। बट डिक्शनरी में थोड़ा डिफरेंस होता है, कि डिक्शनरी में ना आप इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते। क्यों, लेट्स सी। क्योंकि डिक्शनरी में हम डेटा स्टोर ही डिफरेंट तरीके से करते हैं। कैसे, अगर किसी को कोई ज्वाइनिंग में दिक्कत आती है तो बता दिया करो, बिकॉज आई कैन सी मोहम्मद सफ़ी ज्वाइंड, फिर वापस से लेफ्ट, ज्वाइन, लेफ्ट। ओके, तो ये क्या हो गया, ये है हमारा एक नॉर्मल डिक्शनरी। डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं, एक होता है की और एक होता है वैल्यू। किसी ने आज से पहले डिक्शनरी नाम की चीज कहीं पढ़ी थी? डिक्शनरी पता है किसी को, पाइथन में पढ़ रखा है किसी ने? पढ़ा पढ़ा बोलिए। ओके, नोवरीज। तो डिक्शनरी में हम कैसे स्टोर करते हैं, डिक्शनरी में हम दो तरीके से स्टोर करने जाते हैं, बट जो मेन तरीका है हमेशा हम, मतलब या तो आप इसमें की वैल्यू, पहली बात की वैल्यू क्या होती है, जैसे एज है, एज क्या हो गया हमारा, की वैल्यू क्या हुई 25, इफ इट सिमिलर टू जेएस ऑब्जेक्ट्स देन ये, ठीक है। अगेन इफ यू आर कंपेयरिंग पाइथन विद एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, क्योंकि हम पाइथन को प्रोग्राम करने के लिए या तो आप पाइथन से लोअर लैंग्वेज यूज करिए, क्योंकि पाइथन इज ऑलरेडी आई हैव सेड इट इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। अगेन तो ये जो एज है ये क्या है, ये है हमारी की, ये क्या है वैल्यू के, वही कि अगर मुझे कभी कुछ ढूंढना होगा एज के नाम से, मैं पुकारूंगा भाई एज कहाँ है, एज के, अगर मुझे 25 जो वैल्यू है वो एक्सेस करनी है तो मुझे उसकी की पता होना चाहिए। ये क्या, इसका एज अ पासवर्ड है कि नेम नाम का कोई की है, तो नेम नाम की की से मैं एलिस को ढूंढ सकता हूँ, कि कहीं पे मुझे नेम्स ढूंढने हैं तो मैं जाके सीधा नेम टाइप करूंगा, और नेम टाइप करने के बाद डिक्शनरी में वो मुझे क्या मिल जाएगा, एलिस। अब मुझे ढूंढना नहीं है, मुझे नेम तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बोलूंगा कि एक लड़का जिसकी हाइट 5.6 इंचेस है, या फिर एक लड़का जिसकी इंचेस नहीं, सॉरी 5 फीट 6 इंचेस है, या फिर 5 फीट 11 इंचेस है। तो उसके लिए मैं एक की उसे डिफाइन कर दूंगा, की दे दूंगा कि जब भी मुझे इसको एक्सेस करना होगा या फिर कभी भी जब मुझे इसे फाइंड करना होगा, देन आई विल सिंपली कॉल दैट थिंग बाय यूजिंग देयर की। गॉट इट। तो डिक्शनरी के में हम क्या यूज करते हैं, की और वैल्यूज। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या होता है, नॉर्मल कर्ली ब्रेसेस जो आप यूज करते हो, उसके बाद जो आपकी की होगी, कभी ऐसा मत करना कि आप इनको नेम को बिना कॉलम्स के लिख दो, ठीक है, कि वरना फिर वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वेरिएबल कंसिडर करने लगेगा, ठीक। सॉरी कॉलम्स नहीं, इन्वर्टेड कॉमास। एंड देन इसके बाद हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, कॉलन यूज करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू डिफाइन कर देनी है। अगर आपको मैं वापस से लिख के दूं तो ये क्या होता है, यहाँ पे हमारी क्या आ जाएगी, की, और ये होती है वैल्यू।
ठीक है। अगर वैल्यू में आपको कोई वेरिएबल स्टोर करना है तो आप वेरिएबल भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर कोई वैल्यू देनी है तो वैल्यू भी दे सकते हैं। और जैसे यहाँ पे 25 लिया तो 25 इसकी क्या होगी वैल्यू, कॉमा लगा के आप जितनी भी की वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो तो वो कर सकते हो। अब ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ होता है, डिक्शनरीज में, जो मैं बोल रहा था ना वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं रिक्वेस्ट पैरामीटर्स के लिए। रिक्वेस्ट पैरामीटर्स क्या होता है, जब भी आप कुछ भी वेबसाइट पे एक्सेस करने जाते हो तो उसकी ना बैकएंड में रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट ना हर एक की डिफाइन होती है कि जब कोई बंदा ये वाली रिक्वेस्ट करेगा, फॉर एग्जांपल क्लिक रोबोनॉक्स की वेबसाइट ओपन करके देखना, तो उसमें भी क्या होता है कि जब रजिस्टर हियर पे क्लिक किया तो रजिस्टर हियर इसकी क्या होगी, की हो गई। उसकी वैल्यू क्या है, कोई एक स्पेसिफिक पैरामीटर्स मैंने डिफाइन करे होंगे कि रजिस्टर हियर पे क्लिक करने पे ये वाली गूगल फॉर्म की लिंक ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे डिक्शनरी चाहिए चाहिए, बिना इसके या तो मैं ऐसे बनाते जाऊं कि जो अलग से मैं 4 वेरिएबल क्रिएट करूं, चारों वेरिएबल में अलग अलग वैल्यू स्टोर करूं, फिर कहीं जाके मेरा डेटा बने तो हो गया काम, फिर नहीं हो पाता। इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग फील्ड में। ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में होती है, हर जगह अलग अलग फील्ड में अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, डिक्शनरी। और डिक्शनरी में अब होता क्या है, अब आपने देखा कि इसमें मैंने डेटा का एक्सेस कैसे किया, इसमें मैंने इंडेक्सिंग के थ्रू नहीं किया, इसमें मैंने इंडेक्सिंग की बजाय की का यूज किया। तो जो एक्सिस नाम की मैं वर्ड बता रहा था, थर्ड वर्ड आफ्टर म्यूटेबिलिटी ऑर्डर, एंड थर्ड वर्ड वाज एक्सेसिबिलिटी, एक्सेस, नॉर्मल एक्सेस। तो एक्सेस में सेट हमारा क्या होता है, अनइंडेक्सेबल, जिसमें इंडेक्सिंग ही नहीं होती तो एक्सेस की तो बात ही नहीं आती, ठीक है। सेट का आप ऐसे डेटा एक्सेस नहीं कर सकते कि प्रिंट कर दो भाई 0 नंबर इंडेक्स पे क्या है, फर्स्ट नंबर इंडेक्स पे क्या है, सेकंड नंबर इंडेक्स पे क्या है, ठीक है। सेम जो हमारे लिस्ट और टपल्स हैं उसमें आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग, जो हम नॉर्मल किसी भी वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल का एक्सेस करते हैं उसके थ्रू। और डिक्शनरी, डिक्शनरी में हम कैसे एक्सेस करते हैं, की के थ्रू। ऑल क्लियर, कोई कंफ्यूजन प्लीज, अगर यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आएगी तो मुझे बोल देना। आई एम कीपिंग दिस होल 4 टॉपिक्स इन द होल सेशन बिकॉज ये कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ है, पर ये कुछ ऐसी भी चीज़ नहीं है जो आप आसानी से छोड़ सकते हो, क्योंकि आई लिटरली आई कैन गिव यू इन रिटन कि ये जो लिस्ट टपल डिक्शनरी और सेट है, अगर आप कोई भी पाइथन का इंटरव्यू देने जाओगे बेसिक और मॉडरेट लेवल में, ये अगर ना पूछा गया ना तो समझ लेना वहाँ पाइथन प्रोग्रामिंग नहीं होती। आई एम किडिंग, बट इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरव्यूज। लास्ट में मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ कि कैसे आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके पूछे जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज 4 टॉपिक्स, ठीक है। ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि अच्छा ये सामने लिख दिया आप बताओ ये लिस्ट है टपल या डिक्शनरी, ठीक है। वो थोड़ा डिफरेंस होता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लिस्ट टपल डिक्शनरी, sorry, after completing mutability order and access, there is one more point how we can differentiate with in between all of these 4 things, that is duplicates। होता क्या है कि जब आप डेटा स्टोर करने जा रहे हो, कई बार आपके पास बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, आप अभी तो कुछ नहीं, अगर किसी कंपनी के आप गलती से भी आप डेटा एनालिसिस बन गए या फिर डेटा साइंटिस्ट बन गए, तो आपके पास डेटा होगा कुछ एक एक्सेल फाइल में 40 लैक्स का या फिर 50 लैक्स का या कुछ थाउजेंड्स का। तो वहाँ पे थोड़ी ना आप ऐसे चेक करने जाओगे कि हर एक नाम और आप एक्सेस करना है, किसी के चेक करना है कि मुझे बता दो कि किस किसने मुझे 4 स्टार रेटिंग दी है, 3 स्टार रेटिंग दी है, तो मैं पूरा का पूरा 40,000 का डेटा चेक करने जा रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। इसलिए अलग अलग पाइथन के जो मैं आपको रीजंस बता रहा था, वहाँ पे हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। और डेटा एनालिसिस जब हम पढ़ते हैं तब हम उनको देखते हैं कि कैसे हम स्टोर करते हैं इतने सारे डेटा को, ठीक है। बट उन सब डेटा में हमें देखना होता है कि अगर मुझे डुप्लीकेट्स चाहिए क्या, कि मान लो किसी एक बंदे ने 2 बार रिस्पॉन्स कर दिया तो वो क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो अब वो उसको मैं कहाँ स्टोर करने चाहूँगा, आप समझ रहे हो इंपॉर्टेंस इसकी यहाँ कैसे निकल के आती है। कि एज ए प्रोग्रामर अगर मुझे नहीं पता कि ये जो मेरे 4 डेटा स्ट्रक्चर हैं, लिस्ट टपल सेट और डिक्शनरी, मुझे नहीं पता कि इसमें से कौन डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है, कौन डुप्लीकेट्स को अलाउ नहीं करता है, देन हाउ आई कैन डिफाइन कि मुझे ये जो इतना सारा डेटा है वो कहाँ पे फिट करना है, ठीक है। तो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो लिस्ट हमारा जो होता है डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है, टपल हमारा डुप्लीकेट्स को अलाउ करता है, सेट पता नहीं क्यों ये जिंदा है, क्योंकि कुछ तो अलाउ नहीं करता।
आई एम किडिंग, क्योंकि सेट की रिक्वायरमेंट हमें नॉर्मली ही पड़ती है जब भी आपको कोई एक एरे जैसा डेटा चाहिए होता है, तब हम सेट का यूज़ करते हैं। तो हमारा सेट एज यूजुअल डुप्लीकेट्स को भी अलाउ नहीं करता है। अगर कोई आपसे सेट के बारे में पूछे ना, तो बस एक चीज़ में हाँ बोलनी है, वो होता है म्यूटेबिलिटी, कि आप इसका डेटा चेंज कर सकते हो, और किसी चीज़ में हाँ नहीं बोलनी है। कोई पूछेगा कि इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑर्डर होता है इसमें, नहीं होता। डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, नहीं अलाउ करता। ठीक है। डिक्शनरी विद कॉमन सेंस। आप मुझे बताइए कि डिक्शनरीज में क्या डुप्लीकेट्स हो सकते हैं? डिक्शनरी डुप्लीकेट अलाउ कर सकता है क्या? जो सामने नो आपको ये एग्जांपल, नो सर। क्यों? ऐसा मत बोलना कि मैंने पढ़ रखा है इसलिए। सर क्योंकि की वैल्यू पेयर्स है, तो एक की वैल्यू के अक्रॉस एक ही, हाँ एक ही पेयर सेम ऑब्वियस बात है कि अगर मैं किसी को एक की देने जाऊंगा, तो एक की पे मैं अब पता पड़ रहा है, बुला रहा हूँ कि भाई कोई भी पेट का नाम मैं बुला रहा हूँ और आ रहे हैं दो लोग, मेरा कुछ अलग से वर्ड यूज करने वाला है, दैट्स व्हाई स्किप इट, कि भाई मैं किसी एक बंदे को बुला रहा हूँ और दो बंदे चले आ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी चलेगा। तो हमेशा डिक्शनरी क्या होता है कि डिक्शनरी में आप डुप्लीकेट्स नहीं स्टोर कर सकते, क्योंकि भाई हर एक की अपनी स्पेसिफिक की है। ठीक है। और तो क्या क्या हो गया, डुप्लीकेट्स कौन कौन अलाउ करता है? जो लिस्ट है और टपल है वो डुप्लीकेट्स अलाउ करते हैं। सेट और डिक्शनरी डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते हैं। जल्दी से मैं एक एग्जांपल कॉपी पेस्ट मार देता हूँ। देखो, लिस्ट बनाई 1 1 1 एंड 2। ठीक है। अब मैं नॉर्मली इसको प्रिंट करने जाऊंगा, तो ये बहुत अच्छा इंसान है, ये कुछ गड़बड़ नहीं करता है। सामने से जो भी आपने लिखा है वो सामने आपको प्रिंट करके दे देगा। मैंने प्रिंट किया माई लिस्ट, ये 1 और 1 डुप्लीकेट वैल्यूज थी, पर फिर भी इसने कुछ नहीं किया और आराम से हमें प्रिंट करके दे दिया। एक और एग्जाम्पल उठाते हैं, वो है हमारा सेट का। ऑलरेडी इसमें आउटपुट लिखा है भाई, आउटपुट मत लिखा करो, इधर दिखाते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, माई सेट नाम का मैंने एक सेट बनाया, डुप्लीकेट वैल्यू थी, और अगर मैं इसको प्रिंट करने जाऊंगा तो ये ज़्यादा दिक्कत नहीं रखता, बोलता है कि दो दो बार मैं एक चीज़ को नहीं करने वाला। सो नॉर्मल थिंग, 1 और 1 में अगर डुप्लीकेट वैल्यूज है ये इग्नोर कर देगा और पुट कर देगा 1 और 2। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा करूंगा तब क्या होगा? कोई बताएगा? यार बोल लिया करो यार, वरना मैं ना अगली बार से दोनों बैच कंबाइन करके रखूंगा, क्योंकि बोलते तो वैसे भी दो लोग हैं, तो 70 हो या 80 क्या फर्क पड़ता है? सर ऑर्डर तो है नहीं सेट में, तो नहीं होना चाहिए प्रिंट। ऑर्डर ऑर्डर नहीं, हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे डुप्लीकेट्स वैल्यू। तो अगर मैं 1 1 2 प्रिंट करके देखा, तब तो इसने 1 और 2 प्रिंट कर दिया, बट मैं पास, अच्छा ओके ओके आई गॉट योर पॉइंट। आप बोल रहे थे कि चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, ऐसा बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ ओके। तो एज यूजुअल दैट्स हाउ वी कंबाइन द टॉप टू टॉपिक्स इन इंटरव्यूज। जैसे हमने बोला कि इसका जो मेन लॉजिक है वो यही है कि अगर हम सेट की बात करेंगे तो इसमें कोई ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर ही नहीं है तो कहीं भी लिखो, इसके लिए तो सारा एक डेटा है, पैकेट्स हैं। तो आप चाहे पूरे डेटा में, अगर मैं 2233, अगर अब ये कहीं पे भी चाहे 40,000 का डेटा हो चाहे 40 लैक्स का डेटा हो, अगर दो डुप्लीकेट्स वैल्यू एक सेट के अंदर होंगी और मुझे प्रिंट करना होगा माई सेट, देन आई कैन इजिली गेट ओनली द वैल्यूज दोज हु आर यूनिक। ठीक है। अगर आप जब देखते ना एक्सेल सीट में आपके पास जब डेटा होता है, तब अगर आपको डुप्लीकेट डेटा हटाना होता है, कैसे हटाते हैं? अब खैर मैं एक्सेल ही पढ़ा रहा हूँ तो जैसे भी हटाते हैं, बट उसको अगर आप पाइथन पे लेके आते हैं ना, आपको पता है कि एक्सेल की जितनी भी फाइल्स हैं वो जो भी आप एक्सेल पे करते हो वो पाइथन स्क्रिप्ट से कर सकते हो। आपको पता है ये कि आप पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू पूरा एक्सेल मैनेज कर सकते हो अपना विद द हेल्प ऑफ पाइथन। मतलब चाहे आपको कोई फाइल क्रिएट करनी हो, चाहे आपको फॉर्मूलाज लगाने हो, सारा को सारा कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं बैकएंड में उसके भी एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इन्फ्लुएंस्ड है पाइथन जैसी चीज़ पे। ठीक है। तो अगर मुझे या तो मैं
एक्सेल पे जाके डेटा डालूंगा और वहां पे जाके डुप्लीकेट हटाऊंगा, या फिर सारा का सारा डेटा मैं एक सेट में डालूंगा और एक लाइन लिखूंगा प्रिंट माय सेट। जितना भी डुप्लीकेट डेटा होगा, चाहे मैंने 50 लाख डेटा लिखा हो या 1 करोड़ लिखा हो, क्या इतना डेटा हम नहीं रखते, बट फिर भी कोई भी डेटा होगा, डुप्लीकेट्स वैल्यूज हट जाएंगी और हमें सिर्फ यूनिक वैल्यूज प्रिंट होके आ जाएंगी। ओके, गॉट माय पॉइंट। तो हमारे पास क्या क्या हो गया, मैं वापस एक बार देख लेता हूँ। म्यूटेबिलिटी, ऑर्डर, एक्सेस और डुप्लीकेट्स, ठीक है। एक और चीज होती है, अच्छा चलो, हैशिंग करके एक वर्ड होता है, हैशेबल। कोई डेटा जो हमारे पास 4 डेटा सेट्स हैं, ये हैशेबल है या नहीं। आज के लिए ये असाइनमेंट में लिख लेना, एक ही बंदा जो असाइनमेंट रिमाइंड कराता है तो सीधे बोल देता हूँ, सिमरत, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग योर नेम इनकरेक्ट, तो आज का असाइनमेंट है हमारा एलिमेंट टाइप होता है कुछ, तो उसमें आपको देखना है कि कोई डेटा हैशेबल होता है या नहीं होता है, लिस्ट हैशेबल है या टपल हैशेबल है, या फिर कुछ क्या होता है हैशेबल, बट उसको एक्सप्लोर करना बस, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे डिफरेंशिएशन और डेटा स्ट्रक्चर्स का ऊपर वाली चीजें खत्म हो जाती हैं। लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी ये यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं कि आपको म्यूटेबिलिटी पता है, आपको ऑर्डर पता है, आपको एक्सेस करना पता है, आपको डुप्लीकेट्स पता है, और आपको एक जो मैंने हैशेबल बोला वो एक और डिफरेंशिएशन का पॉइंट होता है वो पता है। लेकिन ये तो हो गया कि आपको किसी चीज का डेफिनेशन या फिर होता क्या है वो पता हो गया, बट इनका यूज कैसे करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। तो मैं अभी जल्दी जो मैं बोल रहा था कि हमने थोड़े एग्जांपल्स यूनिक करने की कोशिश की थी, तो एग्जांपल जनरेट करने के लिए मैंने बोला था। तो अब होता क्या है कि लिस्ट हो चाहे या कुछ भी हो, डेटा स्ट्रक्चर, इन सब के साथ पाइथन हमें क्या देता है, बिल्ट इन मेथड्स देता है। बिल्ट इन मेथड्स क्या होता है, सबसे पहले जो मैंने एग्जांपल यूज किया था लिस्ट के साथ, अपेंड किया था। तो अपेंड का यूज हम किस लिए करते थे, अगर हमें कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट यूज करना है तो हम यूज करेंगे लिस्ट के साथ किसका, अपेंड का। एग्जांपल देखते हैं बड़े वेरिएबल नेम्स के साथ, ठीक है। तो भाई देखो ये हमारे पास प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट है मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन एडवांस डेटा एनालिटिक्स, इतने भी पढ़ा नहीं लिखना था, एडवांस डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। और प्रोजेक्ट डॉट अपेंड में हमने लिखा कि एक और प्रोजेक्ट ऐड कर दो, रोबोनॉक्स ड्रोन ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारे पास डेटा था, रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अपेंड। यार ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, पूरी जो हमारे पास एक लिस्ट थी उस लिस्ट में एक और चीज ऐड हो जाएगी, एक और प्रोजेक्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन के केस में हम किसका यूज करते हैं, अपेंड का। ना अपेंड जैसे ही ऑलमोस्ट ये मान लो कुछ 10 12 तो 15 होते ही होंगे, तो वो सारे क्या होते हैं, हमारे बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं पाइथन में। अभी हम देख लेते हैं जितने हम देख पाते हैं, जो बेसिक हम यूज करते हैं, होते तो होते हैं 10 15 कर आप तो होते होंगे एज पर यूज केसेस, वो आप सर्च कर सकते हो, आपको दिखता रहता है, आप सारे तो याद कर भी नहीं सकते, वरना डिक्शनरी टाइप हो जाएगी कुछ 5-6 हज़ार पेजों की, ठीक है ना। एक और चीज होता है क्लियर, जो बेसिक्स होता है वो हम एक बार देख लेते हैं। अपकमिंग मीटिंग्स, टेक फ्यूजन 2.0 रिव्यू, रोबोटिक्स वर्कशॉप प्लानिंग, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास ये 2 मीटिंग्स हैं और ये सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं, अब मुझे ये जो लिस्ट थी हमारी मीटिंग्स वाली ये क्लियर करनी है, तो मैं क्या यूज करूंगा, बिल्ट इन मेथड क्लियर। बिल्ट इन मेथड क्लियर यूज करके अगर मैं अब यहाँ पे प्रिंट करूंगा, देन व्हाट आई विल गेट, कुछ नहीं, खाली डब्बा। रीजन ये एग्जांपल्स का रखने का कुछ ऐसा नहीं है कि हमें प्रमोशन करना था ऑनलाइन क्लास में भी, आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो। रीजन ये है कि हम इनको यूज कैसे करते हैं, कि मान लो मेरे पास मीटिंग की लिस्ट बनी है, अभी नहीं, जब आपके पास डेटा सेट होगा, आपके पास आप कोई ऐप डेवलप कर रहे हो, ऐप डेवलप करते करते आप जैसे जूम मीटिंग है, गूगल मीट है, तो अगर गूगल मीट में आप अगर पाइथन में बना हो या जिसमें भी बना हो, मुझे मैंने तो देखा नहीं हो, जिसमें भी बना हो उसका बैकएंड
बट अगर पाइथन में मुझे बनाना होता जूम मीटिंग जैसे कोई एप्लीकेशन जहाँ पे मीटिंग शेड्यूल होता और मीटिंग शेड्यूल में मुझे एक ऑप्शन देना होता क्लियर ऑल का, तो मैं क्लियर ऑल के आइकन के पीछे क्या लगाता, क्लियर बिल्ट इन मेथड ऑफ लिस्ट। एक लिस्ट में हमारा सारी मीटिंग्स सेट होती, सारी मीटिंग्स डिफाइन होती, और वो क्लियर करनी होती तो मैं क्लियर बिल्ट इन मेथड का यूज करता और सारे जो हमारा डेटा जो डिलीट हो जाता वो हो जाता। आप समझ लो कि अगर हम ऐसे एग्जांपल्स आप अगर देखोगे तब आपको समझना आसान हो जाता है, क्योंकि ये हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि जब तक आप पढ़ते रहो। आई लिटरली फ्यू इयर्स बैक अगर मेरे से कोई पूछता आई हेट प्रोग्रामिंग, आई वाज इन कंप्लीटली इन आईओटी रोबोटिक्स, क्योंकि जब भी मैं कुछ करता था करते रहो बन के क्या है सामने सॉफ्टवेयर पे कुछ कुछ ऐसा हाथ में कुछ आउटपुट तो आता नहीं था। रोबोटिक्स से आईओटी में कुछ कर रहे हो तो ऐसे सामने से बन के बड़ा सा डब्बा या फिर कुछ भी एक हार्डवेयर टाइप की चीज़ होती थी। तो वो एक होता है जब हम कुछ करते रहते हैं और आउटपुट में हमारे पास एक ऐसा लिख के आ जाता है योर कोड हैज़ बीन अपडेटेड, और बैक एंड में कुछ तो भी हो गया। वेब डेवलपमेंट तो तब भी ठीक है कि एक वेबसाइट बन के आ जाती है बगल में, तो कई बार ये बोरिंग हो जाता है। सो वो बोरिंग हटाने के लिए हमने यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐड करने की कोशिश की है। फीडबैक दे देना अगर ये नहीं अच्छे हो, शुड आई यूज दिस, और वो ABCD यूज करो वेरिएबल्स में। अरे वाह, थैंक यू। एक लोग कोई पसंद आया, मतलब बाकी सारे तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा चलो ठीक है, तो हो गया। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हो तो उनके पीछे का आपको पता होना चाहिए कि आप क्लियर, मैं पढ़ाता गया मैंने लिस्ट पढ़ा दी, टपल पढ़ा दी, सेट पढ़ा दी, यूज़ कहाँ होते हैं कहाँ पे होता है वो तो नहीं पता ना। तो उनके लिए हमने ऐसे कोशिश की ऐसे ऐड करने की कि अगर आपने क्लियर बिल्ट इन मेथड पढ़ा तो यूज़ कैसे होता है, यूज़ ऐसे होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे हम जल्दी है हमारे पास अभी टाइम, थोड़े बहुत और देख लेते हैं। कॉपी, ठीक है, कभी अगर मुझे किसी चीज़ को कॉपी करना हो, अब यहाँ पे हमने ना टीम मेंबर्स के नाम लिखे थे, सही किया, वरना थोड़ा प्राइवेसी हर्ट हो जाती। अगर मुझे अब यहाँ पे इसको प्रिंट करना होता तब वापस एक कॉपी जनरेट हो जाती है और टीम मेंबर्स डॉट कॉपी लिखोगे न्यू टीम में, सॉरी इसका क्या मतलब हुआ, ये तो ऑलरेडी स्टोर डेटा है ही है, इसको प्रिंट करने का क्या फायदा, प्रिंट इसको करते हैं न्यू टीम। तो इसकी भी क्या हमने कर ली, कॉपी एक जनरेट कर ली कि मान लो कभी भी आपके पास कोई एक एप्लीकेशन या फिर अगेन कोई वेबसाइट कुछ भी कर रहे हो, अगर उसमें आपके पास किसी की कोई डेटा है उसकी आपको कॉपी जनरेट करनी है सेम डेटा की, तो आप कैसे करोगे, तब आप लिस्ट के साथ एक और पाइथन का बिल्ट इन मेथड होता है डॉट कॉपी, जिसको आप यूज करके एक कॉपी जनरेट कर सकते हो एक डिफरेंट नाम के साथ। ठीक है, ये अगेन हम वेब डेव में इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं जब पाइथन के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है, और भी है, फॉर एग्जांपल काउंट है, एक्सटेंड है, इंडेक्स है, इंसर्ट है। लेट्स हाँ काउंट देख लेते हैं। लुक, अब होता क्या है इसमें ना, सेम अगर आप देखोगे ना बैकग्राउंड में मैं एक्सेल जैसी चीजें ही कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर मुझे काउंट करना है कि अगर जैसे मैं बोल रहा था ना कि 40,000 का डेटा है और आपको काउंट करना है 4 स्टार्स कितने लोगों ने दिया है, या फिर अगर आपने फीडबैक ले रहे हो 4 वर्ड्स के साथ, बेस्ट, बेटर, गुड और बेकार। ठीक है, 4 वर्ड्स हैं, अब किस 50,000 लोगों ने फीडबैक दिया, अब आपको काउंट करना है कि बेटर किसने बोला, बेस्ट किसने बोला, बेकार किसने बोला। तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, डेटा तो ऑब्वियसली आप जो स्टोर कर रहे हो वो आपके ऊपर, आप कहाँ स्टोर करना चाह रहे हो आपका डेटा। आप अगर आपने लिस्ट में स्टोर किया है तो काउंट फंक्शन यूज करके, और जो स्पेसिफिक वर्ड है जो मैंने प्री डिफाइन कर रखा है उन लोगों ने सेलेक्ट किया है, बस हमारे डेटा सेट में स्टोर है वो, मैं बता सकता हूँ कि कितने लोगों ने काउंट सॉरी कितने लोगों ने बेस्ट बोला, कितनों ने बेटर बोला है। अब जैसे कि ये इतनी सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमने लिखी और अगर मुझे उनको काउंट करना है देन मैं क्या करूंगा, पाइथन काउंट को प्रिंट कर दूंगा। ठीक है,
तो इसका भी कहाँ यूज़ होता है, बहुत सारा डेटा सेट है, उसको अगर आपको काउंट करना है तो आप इससे ऐसे काउंट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी मतलब यूजुअल है कि हर जगह ये यूज़ हो रहा होता है। कभी भी आप बैकएंड में किसी भी जगह किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे और आपका रिलेशन है फीडबैक रिलेटेड एपीआईज़ कीज़ के साथ, या फिर अब एपीआई कीज़ क्या होता है देखेंगे, ठीक है। बट होता है कुछ तो भी नॉर्मल, आप ऐसे समझिए बहुत सारा डेटा है, काउंट करना है, आप ऐसे काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? वो तो बोल दो। वी हैव सम फ्यू मिनट्स बिफोर एंडिंग, आई एम गोना टेक सम मोर एग्जांपल। बाकी जो पूरी लिस्ट है वो तो मैं ऑलरेडी, आप ड्राइव फाइल चेक करिए, पूरे जो नोट्स होते हैं वो अपलोड कर देते हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल से ले सकते हैं, सारे एग्जांपल्स नहीं ले सकते, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा वो आप वहाँ पे देख सकते हो सारे के सारे, ठीक है। बाकी कंटेंट की कुछ कमी नहीं है, गूगल पे जाके सर्च करो तो आपको मिल ही जाना है। ऐसा कुछ नहीं मैं बोलूँगा कि भाई हमारा यूनिक कंटेंट है, ऐसा कुछ नहीं। और अगर किसी को स्टार्ट कर, बिगनर्स जो थे, अगर आपको किसी को स्टार्ट करना है तो एक वेबसाइट है W3 Schools करके, ठीक है। अब जिस दिन हम कंटेंट डालेंगे तब मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा, अभी हमारी वेबसाइट पे कंटेंट नहीं है तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दूसरी वेबसाइट। W3 Schools करके एक वेबसाइट है, आइदर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिगिनर हो और आपको बैठे-बैठे खुद से सीखना है पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ऐसा नहीं कि बस बच्चों वाली चीज़ें स्कूल्स लिखा है तो, ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें उसमें मिल जाएँगी। और मुझे उसकी जो बेस्ट चीज़ लगती है ना वो क्या है कि आप पहले हम मतलब एडवांस लेवल पे कूल बनने के लिए हम लोग भी यूज़ करते थे, तो हम जीएफजी के आर्टिकल्स यूज़ करते थे कुछ नई चीज़ें पढ़ने के लिए, गीक्स फॉर गीक्स के जाके या फिर किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे जाके उनके आर्टिकल्स यूज़ करते थे पाइथन वगैरह पढ़ने के लिए, ठीक है। बट W3 स्कूल्स में क्या है कि आप एक्सप्लोर करना खुद से, मैं नहीं दिखाने वाला, उसका प्रमोशन नहीं करेंगे, बट फिर भी W3 स्कूल्स की वेबसाइट पे जाइए, पाइथन पे क्लिक करिए, अब सारे आपके पास एक तो इंडेक्स आ जाएगी सारे टॉपिक्स की, क्लिक करिए। आप क्लिक करते ही आपको ना उसमें बगल में एक जैसे कि पढ़ाया उसने टपल क्या होता है, टपल पढ़ाने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी वो उसमें वो पढ़ाएगा। टपल पढ़ाने के बाद अगर आपने एक एग्जाम्पल लिखा तो सिर्फ उसमें ये नहीं लिखा होगा कि कोड लिख दिया, कोड के बगल में ये भी लिखा होगा ट्राई इट योरसेल्फ। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको जैसे ऑनलाइन कंपाइलर मैंने यूज़ कर रहा हूँ उसका खुद का एक ऑनलाइन कंपाइलर वो ओपन हो जाता है। सो दैट इज़ आई थिंक बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है अगर आप एक पाइथन के साथ बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो। आई विल सजेस्ट एक्सप्लोर दैट वेबसाइट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिस होती है अच्छी हो जाती है, तो उस वेबसाइट के थ्रू आप पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एक्सेस कर सकते हो। दैट इज़ अ गुड वेबसाइट W3 स्कूल्स, अगर आपको सर्च करना है तो आप देख सकते हो, अभी नहीं आफ्टर क्लास ऑब्वियसली, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, फिर हम आज की क्लास से ही समाप्त करते हैं। पॉप रिमूव्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन। कि होता क्या है कि अगर मुझे बताना है कि कहीं पे भी जाके पिन 13th पोजीशन पे 18th पोजीशन पे ये चीज़ जाके रिमूव कर दो, या फिर इंडेक्स, और अगेन जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो लिस्ट के साथ ही हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसमें इंडेक्सिंग ही नहीं है और उसमें आप पॉप का यूज़ करने जा रहे हो, कि अगर सेट की बात करोगे तो सेट को तो पता ही नहीं है कि 1 2 3 होता क्या है, उसमें तो ऑर्डर ही नहीं है ना कुछ, तो वहाँ पे तो आप इसका यूज़ ही नहीं कर सकते पॉप का, ठीक है। फाइनलाइज एग्रीमेंट, तो ये हमारे आज के टास्क थे। वेबसाइट अपडेट करनी थी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सारी डिटेल यहीं डाल दो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट करना था और स्टाफ मीटिंग करनी थी, ठीक है। तो अगर मुझे बताना है कि एक पार्ट इसमें से हटाना है, कौन सा हटाना है? प्रिंट फर्स्ट पोजीशन पर जो वो है वो हमें हटा देना है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट आपको उठाना है जाके वहाँ से, तो आप इसको बता सकते हो कि भाई ये चीज़ जाके उठा लो, और वो अपना उठाने के बाद आपको वहाँ पे प्रिंट करके दे देगा। पॉप 1 लिखा है इसलिए आ रहा है फाइनलाइज रुकना पार्टिसिपेट एग्रीमेंट। अगर मैं पॉप 0 लिखता तो वेबसाइट अपडेट आ जाता, पॉप 2 लिखता तो स्टाफ मीटिंग आ जाता, ठीक है। तो ये हो गया कि आपने लिस्ट टपल सेट और डिक्शनरी तो पढ़ लिया, बट इनका यूज़ कहाँ होता है ये पढ़ना तो आपको, जो मैं बता रहा था फर्स्ट सेशन में कि 2 घंटे में पाइथन पढ़िए वहाँ पे मिल जाता है, बट यूज़ कहाँ होता है, कैसे यूज़ होता है, बैकग्राउंड में चीज़ें कैसे चल रही होती हैं, वो कभी नहीं पता पड़ पाता अगर आपने ऊपर से पाइथन पढ़ी है तो, ठीक है।
जब आपको ऐसे टॉपिक्स पता होते हैं देन आई एम श्योर कि आप कोई भी क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं इन एन इंटरव्यू। और अब क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आई एम गोना पुट सम क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछूंगा, बाकी आपके लिए वापस से असाइनमेंट। चलिए, so I'm putting the first question in the chat box. Can you give an example of a situation where a set would be a more appropriate to use than a list? यार इतने सारे एग्जांपल्स, ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। Someone gonna answer it or not? यस सर, जहाँ पे यूनिक डेटा देखने की जरूरत हो तो वहाँ पे जो आपने एग्जांपल दी। जैसे कि सर जैसे कि वी टेकिंग फीडबैक, द सेम एग्जांपल यू यूज्ड, तो वहाँ पे सिमिलर फीडबैक तो बहुत लोगों का होगा, तो उससे यूनिक फीडबैक निकालने के लिए। ठीक है, द रीजन वाई आई एम पुटिंग दिस क्वेश्चन कि आपको डिफरेंस तो बता दिया कि म्यूटेबल हो गया या ऑर्डर हो गया या एक्सेस हो गया या फिर आपको इंडेक्सिंग करनी है, जो भी। अब सीधा कोई नहीं आके पूछ लेता कि भाई अच्छा चलो बता दो कि म्यूटेबल क्या होता है या इम्यूटेबल क्या होता है या ऑर्डर बता दो क्या होता है, ऐसे कोई नहीं पूछता। क्वेश्चंस को हम फ्रेम करके अच्छे अच्छे वर्डों में डालने के बाद ऐसे करके बना के रख लेते हैं। जो भी इंटरव्यूअर होता है फिर हम एक एक करके पूछते रहते हैं, अच्छा ये बता दो या अच्छा वो बता दो, ठीक है। तो क्वेश्चन बता, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा मैंने, वही सेम चीज थी, बस फ्रेम कर दिया उसको, ठीक है, उसके वर्ड्स में दे दिया। और ऐसे करके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो आंसर आप तभी कर सकते हो व्हेन यू हैव अ क्लियर विजन ऑफ ऑल द डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज 4 टॉपिक्स, ठीक है। अब मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन पुट कर देता हूँ। ये एक ही करता हूँ पहले, ये आप असाइनमेंट रखिए। Why might you use a tuple as a key in a dictionary? कि अगर मुझे टपल को एक की तरह डिक्शनरी में यूज करना हो। अब ये मत बोलना कि 2+2 पढ़ा है और पूछ रहे हो 2+2 का होल स्क्वायर। क्योंकि ये Try it. इम्यूटेबल है, सॉरी, क्योंकि ये इम्यूटेबल है। अब देखो ये गलत बात है, ये होमवर्क है, आप आंसर को अपने पास रखिए। आई डोंट नो ये आंसर सही है नहीं, बट आप आंसर्स को अपने पास रखिए, असाइनमेंट है, ठीक है। एक और ठीक है, बस आप कॉपी पेस्ट करके कहीं पे भी रख लीजिएगा। I'm just putting it here. What will happen if you try to आंसर मत करना प्लीज। What will happen if you try to add a list to a set? Why does this error occur? कुछ तो एरर आएगा। And how can you work around it? पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो ऐसे ही पूछा जाता है कि अच्छा आप मतलब ऐसे इंटरव्यू जो हम रीड करते हैं कि आप से हम बोलेंगे कि अपना कंपाइलर या कुछ भी ओपन कर लीजिए और आपको बोला जाएगा कि ट्राई टू ऐड अ लिस्ट टू अ सेट, एक लिस्ट को सेट के अंदर डालो, फिर हम बोलेंगे अच्छा प्रिंट करो या कुछ भी ऑपरेशन करो, एंड देन यू विल फाइंड एन एरर। फिर बोला जाएगा ये एरर क्यों आ रहा है और ये एरर को आप कैसे हटा सकते हो। सिंपल यही प्रोसेस होता है किसी भी इंटरव्यू का। एज यू आर इन फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर को इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको एटलीस्ट 3 साल है। थर्ड ईयर को इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ साल नहीं है, अभी बस प्लेसमेंट स्टार्ट होने वाले हैं, खत्म होने तो जनवरी फरवरी। अगर आप एनआईटी में तो बस अप्रैल के बाद से आना स्टार्ट हो जाती है थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। और के यू वगैरह में भी शायद सेम ही होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ ऑलमोस्ट प्लेसमेंट सेशन सेम ही होते हैं। तो आप लोगों के भी आने वाले हैं, तो जो ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं बहुत आसान से बोल रहा हूँ, आप प्रैक्टिस के साथ इसमें आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते जाएंगे। ओके, लेट मी पुट वन मोर क्वेश्चन, बस ज़्यादा कुछ नहीं। Last, how would you use sets to find all elements that appear in one list but not in another?
ठीक है, आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे पढ़ा है आपको सेट, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी अलग अलग, बट जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा हमें कंबाइन करके ही मिलते हैं। और अगर एक हैक बोलूँ, अगर आपको पता है कि आपके कॉलेज में ये कंपनी आई है और क्वेश्चंस रिलेटेड होने वाले पाइथन के, तो आप उनके बैकग्राउंड में जाके ये चेक कर लो कि वो कौन से, अगर सर्विस बेस्ड कंपनी तो आप उनकी सर्विसेज क्या क्या है। कि अगर कोई वेब डेव की कंपनी होगी ना, तो अगर मैं एज ए इंटरव्यू अपनी बात करूं तो मैं कैसे इंटरव्यू देने जाऊंगा, मैं डिक्शनरी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ना वो पढ़ के जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है वेब डेव अगर पाइथन के थ्रू हो रही है या फिर पाइथन उसमें एसोसिएटेड है बैकएंड में, देन आई एम श्योर कि बिना डिक्शनरी के वो पॉसिबल ही नहीं है वेब डेव। और डिक्शनरी से हम बहुत ज़्यादा खेल सकते हैं वेब डेवलपमेंट के अंदर। तो अब तो आपके पास चैट जीपीटी है या फिर और भी बहुत सारे एआई वर्जन है, उसको पूछो, आप एक सिंपल उसको कमांड दे सकते हो, अज्यूम यू आर एन इंटरव्यूअर और आप वेब डेव की कंपनी है, डिटेल दे दो कंपनी की, कंपनी डिटेल देने के बाद आप डिक्शनरी पुट कर दो, डिक्शनरी के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको सारे मिल जाएंगे। ये एक हैक है। अगर कोई कंपनी है वो मशीन लर्निंग में उसका काम होता है, देन मैं डिक्शनरी नहीं पढ़ूंगा, मतलब उतना पढ़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता होगा वहां पे लिस्ट और सेट ज़्यादा यूज होना है। ठीक है, ये आप ऐसे करेंगे ना तो आप एक ऐसा समझिए एक बेटर कैंडिडेट बन जाएंगे, क्योंकि आपका जो बगल वाला होगा वो सारा पढ़ के जाएगा, आपके पास स्पेसिफिक पढ़ के आप ही सारा जाना। पता पड़े किसी को मैं ऐसे सजेस्ट कर रहा हूँ, वो कुछ 6 महीने बाद मेरे से आके बोल रहा है आपने बोला था, मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था। ऐसा कुछ नहीं, पढ़ के सब जाना है, बट हाईलाइट करके आप जा सकते हो। वेब डेव पर जैसे कोई कर रहा है काम, तो डिक्शनरी को हाईलाइट करके जाओ, क्योंकि डिक्शनरी यूज होती है वेब डेव में। पता कैसे पड़ेगा क्या यूज होता है, चैट जीपीटी से पूछ लेना। ठीक है, अब अगर मशीन लर्निंग में काम करती है कोई कंपनी, उसके मॉडल्स क्रिएट करते हैं या फिर एआई रिलेटेड मॉडल्स बनाती है, देन आपको क्या पढ़ के जाना है, लिस्ट और सेट। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लिस्ट और सेट के ही आने, क्योंकि उनको वही तो मैं पूछूंगा जिस पे मुझे काम कराना है, बाकी बेजूल का क्यों पूछने जाऊंगा। अगल बगल से जब क्वेश्चन नहीं बचेंगे तब पहले ही पूछ लूंगा, बाकी तो जो काम कराना है वही पूछूंगा। ठीक है, आई थिंक अब हम यहीं पे रुक जाते हैं, वरना अटेंडेंस हमारी 18-19 से घटते घटते 10 आ गई, बाकी के बच्चे भी भाग जाएंगे। ठीक है, so that's it for today. If you have any queries right now or in between of the practice जब आप कर रहे हैं, you can text me over WhatsApp. I will reply. Okay, तो आज के सेशन में हमने ये खत्म कर लिया। Hopefully हम if else loops कल खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपको एक माइनर प्रोजेक्ट दे दूंगा करने के लिए। आपको 31 मतलब 31 कोई एक दिन तो काम कर ही लेना, इतना छुट्टी लेके क्या करोगे। 2 दिन का हम ऑफ रखेंगे प्रोजेक्ट के लिए, आप तब कर लेना, एंड विल स्टार्ट विद 2 जनवरी अगेन। ओके, सो एज ऑफ नाउ किसी को कोई दिक्कत? बचे कितने लोग हैं, लेट मी चेक। गुरलीन कौर, मोहम्मद अली, अफराज, एहसान, खुशी, सिमरत, मोहम्मद हुसैन, मुनीब इलाही। अच्छा मुझे एक बात बोलो, ये टाइम आपके लिए कुछ करना क्यों जाता 7 से 8? किसी को आना ज़्यादा ऐसा तो नहीं है कि मैं थोड़ा रात पे शिफ्ट कर लूँ 8 to 9 या 9 to 10? 7 to 8 ठीक है? यस सर। ओके, तो बस मिलते हैं फिर कल। सिमरत आप एक बार असाइनमेंट रिवाइज करा दीजिए, क्या था आज का? आपने कहा था कि ये हैशेबल का, और फिर जो आपने हाँ, ये क्वेश्चंस दिए ये। बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आप एक बार इनको चेक कर लीजिएगा, बाकी नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा। सॉरी कल की वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड नहीं की है, बट आप लोगों को तो ज़रूरत है ही नहीं, अटेंड कर ही रहे हैं आप एक लेक्चर्स। ठीक, ओके, बाय बाय, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास, हैव अ नाइस डे।